مضمون ہے آج کی شام جو ٹاپک ہم سیکھیں گے وہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرو. آمین. جڑا بڑا ہی مشکل کام ہے. اپنے گناہوں سے کیا کرو؟ توبہ کرو. اور اس میں ہم کچھ باتوں پر غور کریں گے کہ گناہ کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہے, گناہ کس طرح سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے, اور گناہ ہمیں کہاں پر لے کر جاتا ہے, گناہ ہماری زندگی میں کس طرح سے بھال آتا ہے, جڑ پکڑتا ہے. نمبر 1, گناہ زندگی میں بیماری لاتا ہے. آمین. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر میں آپ سے پوچھوں گا. نمبر 1 کیا ہے؟ چرچ, کلیسیا, ذرا مل کر. نمبر 1 کیا ہے؟ گناہ زندگی میں کیا کرتا ہے؟ بیماری لاتا ہے. پھر دوسرا ہے گناہ زندگی کو مفلوج کرتا ہے, مفلوجی لاتا ہے. گناہ کیا کرتا ہے زندگی میں؟ مفلوجی لاتا ہے. پھر نمبر 3, گناہ زندگی میں اچھی چیزوں کو دور رکھتا ہے. نمبر 3, گناہ زندگی سے اچھی چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ دور رکھتا ہے. اور نمبر 3 ہے, میں بھول جاتا ہوں, مجھے یاد کرانا آپ نے. لسیا کرائیں گے یاد جی. نمبر 4, گناہ خدا سے جدائی پیدا کرتا ہے, خدا سے جدا کرتا ہے گناہ. اور نمبر 5, گناہ نسلوں کو برباد کرتا ہے, تباہ کرتا ہے. آمین. تو ہم پہلے پوائنٹ کی جانب بڑھیں گے کہ گناہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اب اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ گناہ کے غلام ہیں. اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کیا ہیں جی؟ ساری رات لگ رہا ہوں, میں نہیں کرتا جتنے فلم سیکھے نا جن تھی بولے. ہماری کلیسیا میں سے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو صرف سنانا نہیں ہے, ہم نے مل کر سیکھنا ہے. آمین. سیکھنا ہے. بیج کو جب بویا جاتا ہے تو زمین چھکی جاتی ہے. جب تک زمین تیار نہ ہو تب تک بیج نہیں بویا جاتا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے کلام کا بیج آپ کی زندگی میں نہیں بویا جائے گا. ہم سٹارٹنگ میں رکے نہیں ہیں. گناہ کیا کرتا ہے؟ غلام کرتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ گناہ کا کیا ہے؟ کہ آپ گناہ کرتے ہیں. ہاں جی, آپ گناہ کرتے ہیں بہنوں, بھائیوں, آپ گناہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ پھر ہم کس کے غلام ہیں؟ ہاں جی, اچھی طرح کس کے غلام ہیں؟ گناہ کے غلام ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ خدا ہم تیرے ساتھ ہیں, ہم خدا تجھ سے مانگتے ہیں, تو دیتا نہیں ہے. خدا کیسے دے بھائیو؟ خدا کیسے دے؟ ہم تو غلام ہیں گناہ کے. خدا کے بیٹے بیٹیاں تو ہے ہی نہیں. لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ غلام ہے. آج رات ہم نے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ میں اس گناہ کی لعنت کو اپنی زندگی سے, اپنے خاندان سے, اپنے فیوچر سے نکالتا ہوں اس اعلیٰ نام کے وسیلہ سے, اور وہ نام یسوع نام ہے. جس سے آپ نے گناہ اپنی زندگی سے نکالنا ہے, وہ نام کون سا ہے؟ یسوع نام ہے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پھر آپ صرف روحانی جسمانی طور پر نہیں بلکہ آپ روحانی طور پر بھی مردہ ہو جائیں گے. اور جب آپ اس روز جب یسوع مسیح آئے گا تو اس کے سامنے جائیں گے تو کہے گا, اے ایمانداروں میرے تو چلا جاؤ. یہ کہے گا, ہاں جی, کیا کہے گا؟ اے بدکاروں میرے پاس سے
मेरी कभी तुमसे वाकफियत है। और ये अल्फाज यीशु मसीह को कहने के लिए कौन सी चीज मजबूर करेगी हमारी जिंदगी में, जो है गुनाह। अगर आप अपनी जिंदगी से गुनाह निकाल देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप जो तख्त बाप की दाहिनी तरफ है, जिस पर उसका इकलौता बेटा आपको और मेरा मुनजी यीशु बैठा है, वो फिर अपनी जगह से उठेगा और हाथों को फैलाकर आपको खुशामदीद, आपको वेलकम करेगा। अगर आप गुनाह को तर्क करेंगे, आमीन, अगर आप गुनाह को तर्क नहीं करेंगे तो आप को मैं बताना चाहता हूँ, फिर यीशु कहेगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। गुनाह बीमारी लाता है, आमीन। लिखा है जब हम यूहन्ना की अंजील को पढ़ते हैं, उसके 5वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक शख्स नजर आता है। लिखा है, बाइबल बयान करती है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए तो लिखा है कि एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। बाइबल बयान करती है, उसके मतलब बाइबल बयान करती, लिखा है कि वो हौज के किनारे है और बैठे हंसा हौज के जब वो किनारे है तो बाइबल बयान करती है कि वो बड़ा मुश्किल में है। 38 साल से वो बीमार है, 38 साल से वो मफलूज है, वो उसका जिस्म का कोई हिस्सा चल नहीं पाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है, वो कहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुझे जब पानी हिलाया जाए तो कोई उस हौज में डाल दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें यहाँ से ये जाहिर होता है कि उसके माँ बाप, उसके बहन भाई ने उनको छोड़ दिया था, उसको वहां पर फेंक दिए हैं, वहां पर रख दिए हैं। और बाइबल बयान करती है कि जब यीशु वहां पर आया और लिखा है कि वो 38 साल का बीमार वहां पर पड़ा है, जब उसने यीशु मसीह ने उस पर गौर की तो उसने जाना कि ये बड़ी मुद्दत से यहाँ पर पड़ा हुआ है, बड़ी मुद्दत से यहाँ पर पड़ा हुआ है। और बाइबल बयान करती है यीशु ने फिर उसे शिफा दे दी। पूछा, आमीन, पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? तो लिखा है, उसने कहा कि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे इस पानी में उतार दे। यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि मैं तुझे उतारूंगा, यीशु ने कहा उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और बाइबल में लिखा है कि वो उसी वक्त उठा और अपने कदमों पर चलना शुरू हो गया। वो जो शख्स चल नहीं पाता था, फिर उसने चारपाई भी उठाई, आमीन। यीशु आपकी जिंदगी में आता है, जब आप यीशु मसीह की बात को मानते हैं, जब यीशु मसीह की बात को सुनते हैं। उसने यीशु मसीह की बात को सुना और वो जो 38 साल से पड़ा हुआ था, उसने अपनी सूरत यीशु की तरफ की, अपने आप को यीशु की तरफ किया और लिखा है कि वो चलने फिरना शुरू हो गया। और आए देखिए हवाला 5वें बाब की 14वीं आयत को देखिए। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 14वीं आयत को देखिए, पढ़े। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। सॉरी मिनट, आप कौन सा वाला पढ़ रही हैं? यूहन्ना की इंजील, हाँ जी पढ़े, इसे आगे पढ़े, पढ़े, यही पढ़े। उसने उससे कहा, देख तू तो तंदुरुस्त हो गया, देख तू तो तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाह ना करना। यीशु मसीह से कह रहा है कि देख अब तू तंदुरुस्त हो गया है, अब गुनाह ना करना। आगे पढ़े। ऐसा ना होके तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए, आमीन। यीशु मसीह कह रहा है तू तंदुरुस्त हो गया है, अब गुनाह ना करना। इसका मतलब कि हमें नजर आ रहा है कि वो 38 साल से जो बीमार था, वो किसकी वजह से बीमार था? ऊंची जरा दसो चर्च, किसकी वजह से? जिसे हम ऐसे पकड़ के बैठे हुए, जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, उस गुनाह के सबब से उसकी जिंदगी के 38 साल जाया हुए।
और जब 38 साल पर हम गौर करते हैं, सुनिएगा, छोड़ दे जो याद जो आ रहा है जो जा रहा है, छोड़ दे, आप सिर्फ कलाम पर ध्यान करें। 38 साल में जो कुल महीने हैं वो है 456। 38 साल में जो कुल महीने हैं वो 456 है, और जो हफ्ते हैं, वीक है, 1981 वीक हैं, और जो डे हैं यानी कि दिन हैं वो 13,870 दिन हैं, और जो घंटे हैं वो है 3,32,880 घंटे हैं 38 साल में। और फिर उसके बाद जो मंथ है वो है 1,99,72,800 मिनट है 38 साल में, और जो सेकंड है 38 साल में वो है 11,98,86,08,000 सेकंड है 38 साल में, जो उसकी जिंदगी के जाया हुए। किसकी वजह से? मेरी बहनों, किसकी वजह से? मेरे भाइयों, किसकी वजह से? गुनाह की वजह से उसके 38 साल जाया हुए। आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें, आप अपनी हालत पर गौर करें। अगर आप बीमार हैं, कहीं आपकी बीमारी आपके गुनाह के सबब से बनी है। अगर आप अभी तक बीमार हैं और डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, आप बीमारी कवर नहीं हो रही, वो बीमारी आपके गुनाह के सबब से हो सकती है। गौर करें, आपने अपनी जिंदगी के कितने साल जाया किए हैं? इस शख्स ने अपनी जिंदगी के 38 साल जाया किए हैं। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि आपने अपनी जिंदगी के कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड आपने जाया कर दिए हैं। और वो आप उस गुनाह को नहीं छोड़े। अगर आपने अपनी जिंदगी के कुछ साल गुनाह में जाया कर दिए हैं, तो आज की शाम रूह कुद्स आपसे कह रहे हैं, यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, क्या तू चंगी होना चाहती है? क्या तू चंगा होना चाहता है? आपका आमीन बताएगा होना चाहिए। अगर आप चंगा होना चाहते हैं, चंगी होना चाहती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने गुनाह को तरक कर दे अपनी जिंदगी से, और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले। अक्सर लोगों से कहा जाए ना, ओ भाई बपतिस्मा नहीं लेंगा, ओ पादरी साहब की दसी कारोबार खरीदा है, झूठ बोलना पैदा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, लिखा है कि जो रास्ते से अपना कारोबार करेगा उसे कभी जुम्बश ना होगी। लिखा है कि आपके और मेरे मौला जी यीशु मसीह ने भी 30 साल की उम्र तक काम काज किया, क्या उन्हें झूठ तो बगैर नहीं किया? दसियो जरा भाइयों, क्या यीशु ने झूठ के नाल काम किया? तो फिर हम झूठ के बगैर कारोबार क्यों नहीं कर सकते? लिखा है जो रास्ते से कारोबार करेगा उसे कभी जुम्बश ना होगी। तो चर्च में आपको बताना चाहता हूँ कि आप रास्ते से करें कारोबार, अपने गुनाह को तरक करें, अपने गुनाह को छोड़े। और अगर आप महीने में 1 लाख कमाते हैं, जब आप रास्ते से कारोबार करेंगे, खुदा आपसे मल्टीप्लाई कर देगा, डबल कर देगा। आप गुनाह छोड़ के देखिए, खुदा आपके सिचुएशन बदल के दिखाएगा। आमीन। खुदा आपकी हालत बदल के दिखाएगा, खुदा आपकी हालत बदल के दिखाएगा, खुदा आपकी जिंदगी बदल के दिखाएगा, क्योंकि वो कादर है और वो कर सकता है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। गुनाह जिंदगी से अच्छी चीजों को दूर रखता है। आमीन। आइए देखिए जरा मेरे साथ खुदा के कलाम में से यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 5वां बाब उसकी 25वीं आयत को देखिए।
21वीं आयत, तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारी बदकारी ने इन चीजों को तुमसे दूर कर दिया इन चीजों को तुमसे दूर कर दिया और तुम्हारे गुनाहों ने और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बांध रखा। अच्छी चीजों को तुमसे अही कहने खुदा देता नहीं है, भाई साहब खुदा देता नहीं है भाई। खुदा आपके लिए चीजें लेकर बैठा है और उन चीजों के दरमियान जो दीवार है वो आपकी बदकारी और आपकी गुनाह की दीवार है। आए उस दीवार को गिराते हैं और उन चीजों को हासिल करते हैं। हमें वो दीवार गिरानी पड़ेगी, हमें वो दीवार गिरानी पड़ेगी। जब हम वो दीवार गिराएंगे तो वो चीजें हमें मिल जाएंगी। मैं एक खादम से एक स्टोरी सुन रहा था, एक बुक में पढ़ रहा था कि एक खादम बयान करता है कि मैं रोया में गया आसमान पर, तो मैंने देखा कि बड़े बड़े कंटेनर पड़े हुए हैं और मैंने फरिश्ता से पूछा कि ये क्या है। उसने कहा ये लोगों की बरकतें हैं, लोगों की अच्छी अच्छी नेमतें हैं, अच्छी अच्छी चीजें जो खुदा हमको दे रहा था। तो उन्होंने कहा ये कंटेनर में बंद क्यों पड़ी हुई है। उसने कहा लोग लेने के काबिल नहीं है, लोग लेने के वो लेते नहीं है, वो लेते नहीं है। उसने कहा क्यों। और बीच में वो जो कंटेनर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी बहनों, हो सकता है कि उसमें आपका भी कोई कंटेनर हो बरकतों का। मेरे भाइयों आपका भी बरकतों का कंटेनर हो। हमारे उस बरकतों के बीच में जो दीवार है वो क्या है। उच्ची बोलो, सच्ची गल है, बोल को कुछ नहीं होगा। क्या है, हमें गुनाह छोड़ना पड़ेगा ताकि खुदा जो हमें अच्छी चीजें देना चाहता है वो खुदा में दे। लिखा है कि खुदा हमें ऐसी चीजें देना चाहता है जो न कानों ने सुनी होगी और न आंखों ने देखी होगी। खुदा हमें उन चीजों से शेयर करना चाहता है, खुदा देना चाहता है। हम मांग रहे हैं, मिलता नहीं है। वजह क्या है। बीच में आज रात हमने उस गुनाह को निकालना है। हमें चर्च आमीन ऊंचा होना चाहिए। आज रात हमने उस गुनाह को अपने दरमियान से निकालना है। आज आप गुनाह अपनी जिंदगी से निकालेंगे, खुदा आपको उन कंटेनर्स के करीब कर देगा। हमें आपके लिए उन कंटेनर्स के दरवाजे खुल जाएंगे और वो बरकतें आपकी जिंदगी में आ जाएंगी और आप कहेंगे वो देना चाहिए, खुदा ने कहाँ से दे दी। आप कहेंगे अब मुझे नहीं पता था कि खुदा ऐसे भी दे सकता। वो पैसे जो बड़े सालों से रुके हुए हैं आप बेकार आके मिल जाएंगे हमें। और शख्स जरा फोन नहीं चुकता कार आके दे देगा, क्योंकि गुनाह की दीवार आपकी जिंदगी से गिर जाएगी। हमें गुनाह आपकी जिंदगी से अच्छी चीजों को क्या करता है। अगर आप अच्छी चीजों के लिए तरस रहे हैं तो फिर अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या वो गुनाह है जिसने आपकी अच्छी चीजों को आपसे दूर रखा है। क्या नहीं है ये आमीन आमीन। आप चाहते हैं अच्छी चीजों को लेना, तो फिर आज रात में इकरार करना पड़ेगा कि वो ही खुदावंद है और खुदा जिंदा है, और अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ेगा। मैं भूल गया हूँ क्या करें। हाँ जी, ऐसे दूसरा से तीसरा कौन था जी, मुझे याद नहीं आ रहा। आपको याद रख के बताएं। हाँ जी बताएं जरा। गुनाह मफलूज करता है, पक्की बात है। ओ ये तो दूसरा पॉइंट था, आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं तो तीसरा मैंने आपको सुना दिया, आपने तो लिस्ट दी थी स्टेप बाय स्टेप, पर आपका ध्यान नहीं है। आपको इसलिए याद नहीं है क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। आमीन। गुनाह क्या करता है, मफलूज करता है, मफलूज ही आपकी जिंदगी में लाता है। आइए देखें मेरे साथ, जब हम मरकस की अंजील को देखते हैं, उसका दूसरा बाब हम जब देखते हैं तो वहां पर हमें एक शख्स नजर आता है। लिखा है कि यीशु मसीह जब घर में लौटे, घर में आए, तो जब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह आया है, तो मेरे अजीजों लिखा है कि गिरदोनवा से लोग आए और
जिस जगह पर यीशु मसीह बैठा था वहां पर बाहर तक कोई जगह ना बची। कहते कि 4 दोस्त थे। कितने? 4 दोस्त, 4 लोग थे। उनका भाई हो सकता है, उनका दोस्त हो सकता है, उनका कोई अजीज हो सकता है। वो एक शख्स के लिए दर्द रखते थे। क्या रखते थे? ऊंची बोले, एक शख्स के लिए दर्द रखते थे। तो लिखा है कि जब वो उस मफलूज को उठा कर लाए तो देखा कि भीड़ बहुत है। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, अंदर जाने की जगह नहीं है। और लिखा है कि उन्होंने जिस जगह पर यीशु था उस छत को फाड़ डाला, घेर दिया और घेर कर उस मफलूज को रस्सी से बांधा, बांध कर ऊपर से लटका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये फौरन वाला काम नहीं है। उन्होंने बड़ी मेहनत की, तब सीढ़ियां नहीं थी, तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस मफलूज को पाला। फिर खुद छत पर चढ़े, फिर उस चारपाई को छत पर चढ़ाया, फिर जमीन उस मिट्टी को खोदा और फिर उस छत को खोला और खोलकर उस मफलूज को लटका दिया। आमीन। पढ़े जरा मेरे साथ मरकज की अंजील उसका 2 बाब 1 से 5 आज तक पढ़े उसे। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। तो सुना क्या कि वो कहाँ है? घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए। उसके पास लाए। मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था उस छत को जहाँ पर वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। आमीन। लिखा है कि खुदा का कलाम बयान करता है कि यीशु ने उस मफलूज का ईमान नहीं देखा, उस बीमार का ईमान नहीं देखा, बल्कि वो लोग जो उसे ईमान के साथ लेकर आए हैं। यीशु कह सकता था कि मैंने शिफा दे देना, इनके अपने गुनाहों तो तौबा कर। लिखा है यीशु ने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। आमीन। आज मेरे भाइयों आप में से बहुत से लोगों को खुदा यीशु मसीह एक बात कहने वाला है कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। आज रात आप जो इकरार कर रहे हैं आपके गुनाह आपकी जिंदगी से जाएंगे और आपकी जिंदगी से हत्या की वो मफलूजी जो आपकी जिंदगी में है वो जाती रहेगी, चाहे वो बेरोजगारी की मफलूजी है, चाहे वो बीमारी की है, किसी भी तरह की है, वो आपकी जिंदगी से जाती रहेगी, क्योंकि यीशु कह रहे हैं कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। आप चाहते हैं कि आप उसे यीशु के, आप चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मुझसे करके तो तेरे गुनाह माफ हुए वो ना करे? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें इकरार करना पड़ेगा कि खुदा मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। आमीन। हमें इकरार करना पड़ेगा कि खुदा यीशु मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। वो आपके गुनाहों को आपकी जिंदगी से दूर करेगा। आमीन। आमीन। और आगे चलती है गुनाह खुदा से
जुदाई पैदा करते हैं। गुनाह क्या है? खुदा से जुदाई पैदा करता है। आइए देखिए मेरे साथ यशाया 59 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। देखो खुदावंद का हाथ देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं और उसका कान भारी नहीं जिस तरह से हमारे कान भारी है। हाँ जी, कि सुन ना सके, कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, रुपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुना। ऐसा कि वो नहीं सुनता। आमीन आमीन। आप जो अपनी जिंदगी में गुनाह को रखे हुए हैं और कहते हैं कि औलाद भी फरमाबरदार हो जाए, नहीं हो सकता। आप जो अपनी जिंदगी से गुनाह को नहीं निकालना चाहते और कहते हैं हालात बदल जाए, चर्च, नहीं हो सकता। हमें अपने गुनाहों को तर्क करना है। लिखे कि उसका हाथ नहीं छोटा या उसका कान नहीं भारी कि वो सुनेगा, आपको छुएगा, बल्कि आपकी जो बदकारी है उसके सबब से वो नहीं सुनता, उसके सबब से वो नहीं सुनता। आपका जो गुनाह है उसने आपको आपके खुदा से रूपोश कर दिया, यानी कि जुदा कर दिया है, जुदा कर दिया है। क्या आप खुदा से जुदा होकर कुछ कर सकते हैं? भाइयों, नौजवानों, आप खुदा से जुदा होकर कुछ कर सकते हैं? फूल तो सारा कुछ ले सकते हो, आप उसे गल्ला करके सारा कुछ ले सकते हो? नहीं। आप खुदा से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए, आप 20 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, अगर आपने अपने गुनाहों को अपनी जिंदगी से तर्क नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 50 साल आपके जिंदगी के ज़ाया हो गए हैं, जिस तरह से उस शख्स के जो 38 साल जिसने ज़ाया किए। वो सुनता है पर आप इस काबिल नहीं हैं कि आप उसे सुना सकें। आपके गुनाहों ने आपके और आपके खुदा के दरमियान क्या की है? जुदाई पैदा की है कि वो नहीं सुनता। हमें उस गुनाह को अपनी जिंदगी से तरक करना है। मैं कहता हूँ खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई चीज तुझे ठोकर बन जाए तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल दे। अगर वो आंख है उसे निकाल दे, अगर वो हाथ है उसे काट दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने आंख, कान या हाथ नहीं बल्कि गुनाह को निकालना है, गुनाह को निकालना है। आपको खुदा से जुदा करके बैठा है। गौर करिए, आपको क्यों अच्छी चीजें नहीं मिल रही? आपकी जिंदगी में गुनाह है जिसने आपको आपके खुदा से जुदा किया है। क्या आप खुदा से जुदा होकर कुछ कर सकते हैं? तो फिर आज उसे अपना शख्सी निजात जिंदा कबूल करें। अक्सर लोग कहते हैं आगे पूरी जिंदगी पे ये बपतिस्मा लेना है। कोई जिंदगी नहीं है यीशु के खुदा के बगैर। जिंदगी जिंदगी नहीं है, जिंदगी बेकार है। हालात बदल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदले तो उसे वेलकम करें, और वेलकम करने के लिए आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी और खुदा की तरफ रुजू होना पड़ेगा। आमीन। अब जो अहम बात है कि गुनाह नस्लों को क्या करता है? तबाह बर्बाद करता है। आइए मेरे साथ देखिए
नोहा की किताब उसका 5वां बाब और 7वीं आयत को देखिए। नोहा की किताब उसका 5वां बाब 7वीं आयत को देखिए। आप जैसे भी जिंदगी गुजार चुके हैं अपनी नस्लों के मुताबिक सोच लें, अपनी औलाद के मुताबिक सोच लें। अगर आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तो आपकी औलाद को, आप अपनी औलाद को नहीं कह सकते कि बपतिस्मा ले। अगर आप शराब नहीं छोड़ेंगे तो आप अपनी औलाद को नहीं कह सकते छोड़। अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो आप अपनी औलाद को नहीं कह सकते। अगर आप कहेंगे, वो कहेगा पापा तू ही कर पी रहे हैं, पापा तू भी तो करता है, तुझे कुछ हुआ मुझे भी कुछ होगा, आगे पड़े। हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे गुनाह करके चल बसे और हम उनकी बदकारी की सजा पा रहे और हैं। हम उनकी बदकारी की सजा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अक्सर मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि वो हमारे बड़े ये काम कर गए और भुगतनी हमें बढ़ रही है। और सुना आपने कभी, सुना कभी आप आदमी को अक्सर ये बात सुनने को मिलती है, सुना कभी आप? अक्सर बड़े क्या करते हैं, वो जादू बाबों के पास जाते हैं और खुद मर जाते हैं और बच्चों को फंसा जाते हैं। और नोहा इस बात को बयान करता है कि हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे और सानू मुश्किल के ऐसा ना हो मेरी बहनों मेरे भाइयों कि आपकी जो औलाद है वो ये कहे कि मेरा बाप ये क्या कर गया है, मेरी माँ ये क्या कर गई है, मुझे फंसा गई है, मुझे गुनाह की दलदल में फंसा गई है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपसे आपके पीछे ये बात करे? कोई चाहता है? यदि औलाद उनके पीछे कहे ओए अब्बा है की कर गई है, नहीं चाहते। तो अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले ताकि आप भी बच जाए और आपके घराने आपकी आने वाली नस्लें भी बच जाएं। और उसके लिए हमने क्या करना है? गुनाहों को जिन्हों से इतना पढ़ के बैठे बहनों देखिएगा ऐसा नहीं छड़वा, बड़ी देर बाद मिले गुनाह को छोड़ दे और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले ले। आमीन। इसके बाद एक और वादा पढ़े, यशायाह 14वां बाब उसकी 21वीं आयत को पढ़े। यशायाह 14वां बाब 21वीं आयत पढ़े। गुनाह किस तरह से आपकी फ्यूचर में काम कर रहा है, आपके फ्यूचर को ब्लैक कर रहा है, डार्क कर रहा है, ब्राइट नहीं कर रहा। अक्सर हम सोचते हैं कि ये काम कर लेंगे फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, नहीं बल्कि फ्यूचर ब्लैक हो रहा है, आपका फ्यूचर खराब हो रहा है। आप पढ़े, उसके फर्जंदों के लिए उसके फर्जंदों के लिए उनके बाप दादा के गुनाहों के सबब से गुनाहों के सबब से कत्ल के समान तैयार करो ताकि वो फिर उठकर मुल्क के मालिक ना हो जाएं और रोए जमीन को शहरों से मामूर ना करे। आमीन आमीन। गुनाह फिर आपकी नस्ल को बढ़ने नहीं देगा, गुनाह आपकी नस्ल को बढ़ने नहीं देगा। आपकी नस्ल एक जगह पर रुक जाएगी और उनके कत्ल का मंसूबा शुरू हो जाएगा। गुनाह जिंदगी में क्या करता है? बर्बादी लाता है। क्या करता है? बर्बादी लाता है। गुनाह जिंदगी में क्या करता है? बर्बादी लाता है, नस्लों को बर्बाद करता है। गुनाह नस्लों को बर्बाद करता है। अगर आपके हालात नहीं बदल रहे तो आप अपनी जिंदगी बदल के देखें। आमीन। आप अपना रास्ता बदल के देखें, गुनाहों को तर्क करें, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी हर एक जो आप खुदा से मांग रहे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप देखते हैं कि आप
फलूजी से कैसे बच सकते हैं, आप बीमारी से कैसे बच सकते हैं, आप गुनाह करने से कैसे बच सकते हैं। सीखना चाहते हैं? ये हासिल कलाम है। आप चाहते हैं कि आप गुनाह से बचें? कितने लोग चाहते हैं? नहीं दिल करता, छठ लोग नहीं है बच्चों ना, मसा मसा इत्थों तक पहुंचे हैं। आप अपनी जिंदगी से गुनाह निकालना चाहते हैं कि आप गुनाह न करें, बचना चाहते हैं गुनाह से, तो आए मेरे साथ एक हवाला देखिए हासिल कलाम ज़बूर 119 उसकी 11 आयत, ज़बूर 119 उसकी 11वीं आयत को देखिए। मैंने तेरे कलाम को मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया अपने दिल में